الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو اپنے گھر کے اندر حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ مزید کرم یہ فرمایا بارگاہ خداوندی نے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے محبوب کالی کملی والے سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا، اور رحمت بن کر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کے آنے سے عورتوں کو ان کا حق ملا، مزدوروں کو مزدوروں کا حق ملا، جانوروں کو ان کا حق ملا، بیٹیوں کا ان کو حق ملا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ مزدوروں سے مزدوریاں کرواتے تھے،
دو تین تین سال تک مزدوری کرتا رہتا تھا، لیکن ان کو ان کی اجرت نہیں ملتی تھی۔ آقا علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ پاک نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، میں نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد مزدوروں کا ان کا حق ملا، بیٹیوں کو ان کا حق ملا، عورتوں کو ان کا حق ملا، کمزوروں کا ان کا حق ملا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو چاروں طرف جو ظلم بربریت چھائی ہوئی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے لگے۔ تو آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت اور اس دنیا سے جانا بھی رحمت۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، ہم نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتے وقت آسمانوں کے نظام کو بھی بند کر دیا اور زمین کے نظام کو بھی بند کر دیا۔ اللہ پاک اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتے وقت کن کن چیزوں سے پیدا کیا، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک، پیٹ مبارک کے اندر 9 مہینے تک رکھا، اور 9 مہینے میں اللہ پاک نے کون کون سی بشارتیں، کیا کیا خوشخبریاں دی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ پھر ولادت ہوتی ہے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ پاک نے کعبے کو بھی جھکا دیا۔ بتانا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو تھا، مرتبہ جو تھا، وہ کعبے سے بھی اونچا تھا، مقام ابراہیم سے بھی اونچا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سارے نبیوں کا امام بنا دیا، تو ان کا آنا بھی مبارک۔ اور اسی مہینے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا، اور اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ مدینہ المنورہ کے اندر وہ کون سی ایسی صبح تھی کہ پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ
खजूर के दरख्त पर चढ़ के खजूर तोड़ रहे थे। जब उनको ये बात पता चलती है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल कर गए, आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो वो खजूर के दरख्त पर ही बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को बारगाह खुदाबंदी पे उठाते और कहते कि अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से विसाल कर गए तो अब मुझे मेरी आंखों की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक मुझे तू अंधा कर दे। ऐ बारी ताला, मुझे मेरी आंखों की अब जरूरत नहीं है, अब मुझे अंधा बना दे। हदीस की किताबों में लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों की बीनाई चली गई। उसके बाद फिर हाथों को उठा करके बारगाह इलाही में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, मेरे दोनों कानों की सुनवाई को तू छीन ले। अब इन कानों की सुनाई से कोई मतलब नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया है, अब मैं क्या करूंगा इन कानों को, मुझे तो बहरा भी कर दे। हदीस की किताबों में लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने बहरा भी बना दिया। लोगों ने पूछा कि अब्दुल्ला, ये तेरे आंखों को क्या हो गया, तू देख नहीं सकता, तू सुन नहीं सकता, तेरे कानों को क्या हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या है मेरे भाई, अभी इन आंखों को क्या मतलब, इन आंखों से ये आंखें थी तो मैं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखा करता था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं रहे तो इन आंखों को रहने का क्या मतलब है। और यही कान मेरे जो थे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनते थे, प्यारी प्यारी आवाजें इस कानों के अंदर जाती थी। लेकिन जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, उनका विसाल मुबारक हो गया है, तो मेरे इन कानों की कोई जरूरत नहीं है। हदीस की किताबों में लिखा है कि जैसे तैसे हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के पास पहुंचते हैं। घर वाले परेशान कि अब्दुल्ला तुमको क्या हो गया, तुम तो अभी अच्छे खासे थे, तुमको दिखाई देता था, तुम्हारी आंखें सलामत थी, तुमको क्या हो गया, तुम कुछ सुन भी नहीं सकते, तुम्हारे कान भी सलामत थे, अभी क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने बारगाह इलाही में दुआ की है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लेकर चले गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अब मेरी इन आंखों की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरे इन कानों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह मुझे मेरे आंखों की बीनाई को छीन ले, अल्लाह मुझसे मेरे कानों की सुनवाई को छीन ले। अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क़यामत के दिन मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला तुमने क्या लेकर आया, तो मैं कह दूंगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके इश्क में अपनी आंखों को और अपने कानों को लुटा करके चला आया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे आशिक़े रसूल थे कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर फैलती है तो मक्के के अंदर एक हलचल मच जाती है, कोहराम मच जाता है। मदीने के अंदर कोहराम मच जाता है और मदीने के अंदर ऐसा कोहराम बर्पा होता है, ऐसा पहाड़ टूटता है मदीना वालों के ऊपर, सहाबा इकराम के ऊपर, कि कोई सहाबा वन की तरफ भाग रहा है, कोई मैदान की तरफ भाग रहा है, कोई रास्ते पे चला जाता है। ज़ारो कतार सहाबा के अंदर रोने की आवाजें आ रही थी, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लोग कहते थे कि हमने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की है, उतना तो हमने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं की, जितनी मोहब्बत हमने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है, उतनी मोहब्बत अपने वालिदैन से नहीं की, अपने माँ बाप से नहीं की, जितनी मोहब्बत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने की है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन कहने लगे कि हम तो
यतीम हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, सारे सहाबा में हलचल मची हुई थी। सारे सहाबा कहते थे कि अल्लाह के रसूल हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। कोई सहाबा कहता था अल्लाह के रसूल हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। तीसरा कहता था नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। हर सहाबा यही कहते थे और कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के पास अपनी तलवार लेकर खड़े हैं और कहते हैं कि अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा फरमा गए या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया, उसकी गर्दन मैं उड़ा दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबी हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की उन्होंने। छोटी सी उम्र से खिदमत कर रहे थे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब उनका विसाल मुबारक अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार रो रहे थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से चादर को हटाते हैं और पेशानी को पकड़कर बोसा देते हैं, गाल रुखसार मुबारक को पकड़कर बोसा देते हैं, होठों को बोसा देते हैं, आंखों को बोसा देते हैं, चूमते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 साल से करता आ रहा हूँ। और जिस तरह अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, उनके चेहरे से वैसा ही नूर टपकता था, अभी भी उसी तरह से उनका चेहरे से नूर आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नहीं हुआ। इतना ज़ारो कतार रो रहे थे कि वहां से भागते भागते बाहर निकले, मदीना की गलियों में जाने लगे, हिचकियां भर भर के रो रहे थे। मदीना की गलियों में जब पहुंचते हैं तो छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चों की आवाजें आ रही थी, रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ओ माओ क्या हो गया तुम लोगों को क्या हो गया? अरे अपने बच्चों को तो दूध पिलाओ। लेकिन माओ की आवाजें आने लगी, ऐ अनस, जब से इन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक की खबर सुनी है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने की खबर सुनी है, इन बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा का इश्क अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क था। हदीस की किताबों में लिखा है कि इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरान जिंदगी एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर तू मांग ले, क्या मांगता है? आज अल्लाह से तुझे अता करवा दूंगा, आज अल्लाह से तुझे मैं दिलवा दूंगा, तुझे क्या चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं आपका चेहरा हमेशा देखता रहूं। इतनी मोहब्बत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के अंदर थी। हदीस की किताबों में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे और आए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से चद्दर को हटाते हैं, पेशानी को पकड़कर बोसा देते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं और 4 बात इरशाद फरमाते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जब आप थे तब भी आपका चेहरा 14वीं रात की तरह चमकता था और इस दुनिया से जब आपका विसाल मुबारक हो गया है तब भी आपका चेहरा वैसे ही चमक रहा है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक को चूमते हैं, होठ मुबारक को चूमते हैं, आंखों मुबारक को चूमते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद से नहीं गए, आप खुद से नहीं गए, हमको छोड़ के आप खुद से नहीं गए, आपको अल्लाह पाक ने बुलाया है। अगर आप खुद से जाते तो ये अबू बकर अपनी जान दे देता मगर आपको जाने नहीं देता। अबू बकर अपनी जान दे देता, अगर मेरे पास अबू बकर के पास 100 जाने होती तो 100 जाने कुर्बान कर देता, लेकिन आपको अल्लाह के रसूल आपको जाने नहीं देता, लेकिन आपने तो अपनी मर्जी से इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तीसरी बात
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع کیا ہے، آپ نے منع کیا ہے رونے چیخنے چلانے سے، آپ نے منع کیا ہے کپڑے پھاڑنے سے، آپ نے منع کیا اپنی بدن کو ایسا پہنچانے سے، ورنہ ابو بکر یا اتنے صحابہ جتنے لوگ ہیں، جتنے صحابہ ہیں، سب اتنا روتے کہ ان کے آنکھ سے آنسو ختم ہو جاتے، خون کے قطرے ٹپکنا شروع کر دیتے، اشک کی جگہ پر خون جاری ہو جاتا۔ ابو بکر اتنا روتا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے اور خون کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے۔ چوتھی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے اس دنیا کے اندر اپنی امت سے محبت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کو بھول نہ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے اپنی امت کو اس دنیا کے اندر پیار و محبت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی اس امت کو بھول نہ جانا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، سارے صحابہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بلال یہاں پہ بیٹھے تھے، بار بار گشی کھا کر گرتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، بار بار اتنا روتے تھے، چیختے تھے، اتنی چیخ نکلتی تھی ان کی کہ وہ زمین پہ گرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو باہر بھیجا ہے، مسجد نبوی کے پیچھے جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں اور مسجد نبوی کے پیچھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں دونوں پیروں کو اپنے پیروں کے بیچ میں اپنے منہ سر کو ڈال کر کے ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا غم ان کے اوپر طاری تھا۔ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور پیچھے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں بلال، اے بلال کیا ہو گیا؟ اے بلال۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے تو اشک جاری ہے، اتنا رو رہے ہیں، ان کی ادب بہت کرتے تھے حضرت بلال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام بہت کرتے تھے، ان کی قدر بہت کرتے تھے، ان کی عزت بہت کرتے تھے۔ وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے گلے کو پکڑ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہچکیاں بھر بھر کے رونے شروع کر دی، جن کے اندر سینے سے سینہ جب ملتا تھا۔ حضرت حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جیسے ہنڈی کے اندر کھانے کی بھج بھج کی آوازیں نکل رہی تھی، آتی ہیں جب کھانے ابلتے ہیں، کھانے بنتے ہیں، اسی طرح سے دونوں کے سینوں کے اندر جو دل تھا وہ دھڑکتا تھا اور بھٹ بھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، اتنا ساروں قطر رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قد حان وقت الظہر، اے بلال ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اے بلال ظہر کا وقت ہو گیا ہے، آپ مؤذن ہیں، آپ اذان دے دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اب میں اذان نہیں دے سکتا، اے ابو بکر میں اب نہیں اذان دے سکتا، اے ابو بکر مجھے مت کہیے، اب میں اذان نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ جس وقت میں اذان دیتا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ میں جب اذان دینے کھڑے ہوتا تھا اور اللہ اکبر کی صدائیں دیتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا تو میری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جا کے ٹکراتی تھی اور میں یا تو پھر ان کے حجرے مبارکہ سے ٹکراتی تھی۔ ابھی میں اذان دینے کھڑا ہوں گا، منبر پہ کھڑا ہو کے اذان دینا شروع کروں گا تو میری نظر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے گی، میرے نظر کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں آئے گا، ان کا جنازہ مبارک نظر آئے گا، میں اذان نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے ابو بکر صدیق میں اذان نہیں دے سکتا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بلال تجھے اذان دینا پڑے گا اور مجھے نماز پڑھانا پڑے گا، آج جا تو اذان دے دے اور میں نماز پڑھا دوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اے ابو بکر میں اذان نہیں دے سکتا ہوں، میری راز کی بات تھی، آج تک کسی صحابہ
सहाबा को नहीं पता था कि जब मैं अजान देता था और अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचता था तो मेरी नजर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से टकराती थी। मैं उनका चेहरा मुबारक देखता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक अगर नजर के सामने नहीं होता तो मैं उनका हुजरा मुबारक देखता था। और आज मैं अजान नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा मुबारक रखा हुआ है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस की किताबों में लिखा है कि उन्होंने फरमाया, ऐ बिलाल ठीक है तेरी मर्जी, अजान दे, तू अजान नहीं देगा और मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी, अल्लाह को भी तकलीफ होगी। ऐ बिलाल अगर तू अजान नहीं देगा तो अजान नहीं होगी और मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होगी। इतना सुनना था कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर खड़े हो जाते, ज़ारो कतार रोने लगते हैं और कहते हैं, अबू बकर अगर मैं अजान नहीं दूंगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी ये बिलाल तकलीफ नहीं दिया। मक्के के अंदर मुझे मुश्रिकों ने मारा है, मक्के के अंदर मुझे वहां के शरीर लड़कों ने मुझे पत्थर फेंक फेंक के मारा, मेरे जिस्म को लुहान किया था। आप ही ने तो अबू बकर मुझे खरीद करके आजाद किया था। अबू बकर तुम्ही ने मेरे जख्म को धोया था। अबू बकर तुम्ही मुझे पानी दे रहे थे, मैंने कहा था मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके चलो और उनके हाथ पर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, उन्हीं के हाथ मुबारक से मैं पानी पीऊंगा। मुझे प्यास की शिद्दत बहुत लगी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से मैंने पानी पिया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी में तकलीफ नहीं दी है तो मैं अब भी तकलीफ नहीं दूंगा। और इतना कहना था कि वो मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और एक सदा बुलंद करते हैं, अजान देना शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे जब पहुंचते हैं तो हदीस की किताबों में लिखा है कि 11 मर्तबा हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु गिरते थे, बेहोश हो जाते थे। 11 मर्तबा हदीस की किताबों में लिखा है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान जब देना शुरू कर दी है तो 11 मर्तबा गिरे और बेहोश हो गए। फिर होश आया, फिर खड़े हुए, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। इसी तरीके से 11 मर्तबा जमीन पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ऐसा इश्क था अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा का। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका विसाल मुबारक होता है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना छोड़ देते हैं, मदीना छोड़ देते हैं और दमिश्क चले जाते हैं। दमिश्क की जामा मस्जिद के इमाम बनते हैं, चले जाते हैं। उनका दिल नहीं लगता है, बोलते मैं यहां मदीना में नहीं रह सकता। गली कूचे में चलता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का दीदार करता था। मैं भूखा पेट पर पत्थर बांटता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक देख लेता था, मेरी भूख प्यास खत्म हो जाती थी। मैं दिन भर काम करता था, मुझे थकावट लगती थी, लेकिन इन नजरों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जब मेरी नजर पहुंचती थी मेरी थकावट दूर हो जाती थी। मक्का के मुशरिक जब मेरे सीने के ऊपर चक्की का पत्थर उठा के पटका था और मुझे इतना जख्म था कि मेरा सीना, मेरे अंदर की मेरी फ्रैक्चरिंग जो थी वो बहुत दर्द कर रही थी। लोग मक्का के मुशरिक जब मुझे तपती हुई रेत के ऊपर घसीटते थे, वो उस वक्त जो मुझे तकलीफ होती थी, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा था, मुझे सारी तकलीफों को गायब हो जाती थी। मैं जब मक्का के मुशरिकीन और वहां के शरीर बच्चों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था, मुझे मार मार कर वहां का वो अबू जहल और उमैया मुझे जब इतना अजियत पहुंचाते थे, मेरी बदन कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर जख्म के निशान ना हो। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा जब देखता था, सारी परेशानी मेरी दूर हो जाती थी, मेरे बदन से दर्द गायब हो जाते थे। हजरत बिलाल दमिश्क में पहुंचते हैं, कुछ अरसा वहां थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर गए, बोले बिलाल मुझे भूल गया है, ऐ बिलाल तू मुझे भूल गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मोहब्बत में वहां पे रहता तो मैं मर जाता, मैंने जिंदा नहीं रहता। मैं आपकी मोहब्बत में मदीना छोड़ करके दमिश्क आया हूं, बहुत मजबूरी थी मेरे
सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल तो एक बार तो आजा मुलाकात करने के लिए। ख्वाब के अंदर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। सुबह में जब उनकी नींद खुलती है, सुबह में जब नींद से बेदार होते हैं, दमिश्क से फौरन अपनी ऊँटनी को लेकर भागते हुए मदीना की तरफ आते हैं। रोज़े मुबारक के ऊपर पकड़कर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र को पकड़कर चिमट के ऐसे रोने लगते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं आ गया हूँ, मैं अल्लाह के रसूल आ गया हूँ। इतने में हदीस की किताबों में लिखा कि पीछे से इमाम हसन और हुसैन आते थे, दोनों आए पहुंचे और बोले चाचा बिलाल आ गए, चाचा बिलाल आ गए, चाचा बिलाल आ गए। जब उनकी आवाज हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में पहुंचती है, वो उठते हैं और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन को और दूसरी तरफ इमाम हसन को उठाते हैं और कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते थे और इसी तरीके से उठाते थे। उन्होंने कहा, हजरत इमाम हसन और हुसैन ने कहा कि चाचू आज एक मर्तबा अजान दे दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने वाली अजान दे दो। ए चाचू जब से आप गए हैं आपकी अजान यहाँ पे कोई नहीं दे सका, वो अजान सुनने के लिए, वो आवाज सुनने के लिए हम लोगों के कान तरस गए। ए चाचू एक मर्तबा अजान दे दो। उन्होंने कहा ये मैं खड़ा होता हूँ तो इमाम हसन और हुसैन की वजह से, वरना मैं मदीने के अंदर अजान नहीं देता। अजान देना शुरू कर दिए। मदीना के अंदर सारे चारों तरफ जो मदीने के अंदर आवाज गूंजने लगी, सारी औरतें घरों से अपने बाहर निकलने लगी और कहने लगी कि ये तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने वाली अजान है। वो कौन सा जमाना वापस आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना वापस आ गया। सारी औरतें बाहर निकलने लगी और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जब यहाँ से दमिश्क वापस जाते हैं तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ऐ बिलाल आज तो अफ्तार अपने बीवी के साथ में दस्तरखान पे कर लेना, आज सहरी तो अपने बीवी के दस्तरखान पे कर लेना और अफ्तार तो मेरे दस्तरखान पे करेगा। मर्जुल वफात में मुब्तला हो गए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आखिरी वक्त चलने लगा, दमिश्क की जामा मस्जिद में अजान होने वाली थी और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। उनकी बीवी कहती है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो बेवा होने वाली हूँ, मैं बेवा होने वाली हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। बोले इधर आ, तू भी मुस्कुरा, आज मुस्कुरा ले, आज मेरा बहुत खुशी का दिन है, आज तू भी देख आसमान की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं, जन्नत का दस्तरखान मेरा इंतजार कर रहा है। उनकी बीवी आती, हदीस की रवायतों में लिखा है कि वो उनकी बीवी जब देखती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े हैं और जन्नत का दस्तरखान भी लगा है। उधर एक तरफ मस्जिद दमिश्क की जामा मस्जिद में अजान होती है मगरिब की और इधर उनकी रूह परवास कर जाती है। ऐसे आशिक रसूल थे कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विशाल कर गए तो वहां पर रहना भी पसंद नहीं किया, किसी की जबान से ये सुनना पसंद नहीं किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल मुबारक हो गया। सारे सहाबा मजनू बन गए थे, दीवाने बन गए थे, बनकर रास्ता इख्तियार कर लिए, पहाड़ों की तरफ चले गए, मैदानों की तरफ चले गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था, इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे, उनका विशाल मुबारक हुआ था, वो भी महीना रबीउल अव्वल का था। हदीस की किताबों में मिलता है कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, पीर का दिन था। पैदाइश में तो आगे पीछे भी मिलती है, 7 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल, लेकिन विशाल मुबारक की तारीख एक ही मिलती है, 12 रबीउल अव्वल। दुआ फरमाए बारगाह इलाही में कि अल्लाह पाक हम सब लोगों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। अल्लाह पाक हम सब लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत और अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।